Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 5th October 7:15 p.m. and I welcome you all to another learning video wherein we'll discuss and we'll have a session where uh, we'll see that how entries are made or how entries are triggered in different setups, different time frames. So I hope you are able to see the screen and we're gonna discuss all the setups which are mentioned on the screen. 15 minutes opening candle strategy, moving average. Moving average will be time frame based because the your being an intraday trader or being a swing or position trader depends upon your time frame you're using. So there will be daily high and low, and this daily high and low would be also basically weekly high and low and monthly high and low. That also I'll explain, and Fibonacci. So in all these setups, we'll discuss that how an entry is made or how an entry of a trade, whether it's a bullish trade or whether it's a bearish trade, how it is triggered. All right. So I think it's gonna be a roughly 30 to 45 minutes long video, so please view it with patience. देखो यहाँ पे आप अगर कोई वीडियो देख रहे हो या कुछ आप सीख रहे हो, so you'll not go empty handed after watching the whole video. All right, and it is, I think, very crucial कि to know that how to enter into any position, whether it's bearish whether it's bullish. इसकी पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू एंटर इनटू ट्रेड्स, बेसिकली हाउ टू फॉर्म ट्रेड्स, आपको ट्रेड्स कैसी बनानी है, व्हाट विल बी योर रिस्क मैनेजमेंट. बट इसमें हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे. इसमें एसेंशियली सिर्फ हम एंट्री डिस्कस करेंगे कि एंट्री ट्रिगर कैसे होती है, हाउ आर दीज सेटअप्स ट्रिगर्ड, whether it's for bullish or whether it's for bearish. All right, so without any more delay, let's straight I think go to the charts. अब देखो मैं ये चार स्ट्रैटेजी आपको समझा देता हूँ. जो मूविंग the moving averages strategy, I have a separate three videos for them, part 1, part 2 and part 3. I will attach a link for all the three videos in the top right corner of this video and even at the last of this video, and if you want I can attach that into the description box also. And before even starting this video, if you are someone from the Telegram group, leave a like, leave a comment. If you have any doubts, leave in the comment section, I'll be happy to help. All right. And if you are someone watching the video for the first time, and if you're liking the content, subscribe to the channel, join our Telegram group. We have very in-depth discussions on our Telegram group, whether it's intraday trading, whether it's swing, whatever it is, whether it's stocks, whether it's commodities, gold, silver, natural gas, crude, whatever it is, everything about trading, whether it's Indian economy. So we have a lot of in-depth and meaningful discussions in our Telegram group. So please do join that. All right, and I think yeah, if you're someone new, leave a like, leave a comment. All right, so let's get started. uh, so yeah, so regarding this moving average setup, right, I have already uploaded some videos wherein I'm explaining in depth that what exactly is moving averages and how do we deal with them. So in this video, I'll not discuss what exactly are these setups. I'll only discuss that how are entries being triggered in these setups, right? So we'll start with 15 minutes opening candle strategy. We'll straight go to and we'll have a discussion on this one, Nifty 50. All right. So there you go. Opening candle, 15 minutes opening candle strategy. What does it says? It says कि अगर आपका मार्केट खुल रहा है, right, so you have to mark, let's suppose we'll take an example of let's suppose 4th, right, this one. So we'll take 4th of September and we'll mark what this strategy says कि मार्केट जब भी खुल रहा है आपको फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का हाई और लो मार्क करना है. ठीक है, ये मैंने हाई और ये लो मार्क कर दिया. नाउ what this 15 minutes opening candle strategy says or defines is, अगर आपका 15 मिनट कैंडल स्टिक्स का हाई ब्रीच हो रहा है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल स्टिक का हाई ब्रीच हो रहा है एंड उसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन हो रही है, ठीक है, तो आपके लॉन्ग्स ट्रिगर होंगे. और वो लॉन्ग्स का एसएल कहाँ होगा, जब तक एक 15 मिनट्स की कैंडल स्टिक आपकी 15 मिनट के लो के नीचे बंद नहीं हो जाती. सो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर किसी ने ये 15 मिनट्स कैंडल देखा एंड यहाँ पे एक कैंडल बंद हुई यहाँ पे. अच्छा, अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, दे फाइंड डबल कंफर्मेशन. डबल कंफर्मेशन एज इन कि अगर मेरी दो कैंडल स्टिक्स और मेरी एक 30 मिनट कैंडल स्टिक्स 15 मिनट्स के हाई के ऊपर बंद हो रही है. ऑल राइट, लेट्स आई नॉट चेंज द टाइम फ्रेम बिकॉज उससे क्या होता है, देखो बार बार आपको आगे पीछे करना पड़ता है, राइट.
तो यहाँ पे देखो 30 मिनट्स है, तो यहाँ पे कुछ लोग क्या, देखो है एसेंशियली 15 मिनट्स strategy, but what people do is for more confirmation, for better trend, because everybody knows the larger the time frame, the stronger the signal, right? So in order to get more better confirmation, I mean in order to get better confirmation, people, what people do essentially is they switch to 30 minutes. So if by 30 minutes candle is closing, so by 30 minutes I mean two consecutive 15, so आप 15 पे भी रह सकते हो and you can wait. If you want more confirmation, you can like you can basically wait and wait for two consecutive 15-minute candlesticks being closed above the high, first 15-minute candlestick high. So what this strategy defined is, देखो आपको 15 minutes का high और low mark करना है, and whenever a single candle closes above the high, you have to trigger your longs, एंड उस लॉन्ग का जो पोजीशन आप ट्रिगर करोगे उसका बेसिकली एसएल रहेगा इसका लो, फर्स्ट 15 मिनट कैंडलस्टिक के लो, इसके नीचे जब आपकी कोई कैंडलस्टिक ऐसे क्लोज हो जाए तो आपने जो लॉन्ग यहाँ पे इनिशिएट किया वो एग्जिट हो जाएगा. अब द पीपल हु टेक डबल कंफर्मेशन टू कॉन्जिक्यूटिव 15 मिनट्स, उनके लिए सेटअप कहाँ ट्रिगर होता, एंट्री, उनके लिए एंट्री कहाँ ट्रिगर होती, राइट? देखो उनके लिए एंट्री कहाँ ट्रिगर होती है, टू कॉन्जिक्यूटिव 15 मिनट. ये 15 मिनट यहाँ क्लोज हुआ और उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ, ये यहाँ पे हो बट नीचे आ गया, यहाँ पे क्लोज हुआ नीचे आ गया. अब टू कॉन्जिक्यूटिव कहाँ पे क्लोज हुई, ये देखो दिस एंड दिस, बट ये आपकी एक बेरिश बन रही है, तो आप यहाँ पे बेसिकली एंट्री ट्रिगर करोगे अपने. ऑलराइट, वेयर विल यू ट्रिगर, यू विल ट्रिगर एट दिस पॉइंट. बट जो थोड़े से मतलब रिस्की ट्रेडर्स हैं या द वंस हु लाइक टू टेक रिस्क, उनको कंफर्मेशन मिलेगा एक कैंडल स्टिक पे, दे टेक द कंफर्मेशन ऑन द फर्स्ट क्लोजिंग, एंड यहाँ पे आप लॉन्ग इनिशिएट करो, एंड आप जब तक एग्जिट नहीं करोगे जब तक ये लो ब्रीच होके 15 मिनट में सस्टेन नहीं करता. ये एंट्री यहाँ पे भी, अब देखो ये एंट्री बेसिस यहाँ पे हुई, तो इसको आपको कहाँ तक लॉन्ग मिला, यहाँ तक. अब आप यहाँ से बैठे हो, आपने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ली, आपने एग्जिट नहीं क्योंकि ये इसका लो ब्रीच नहीं हुआ, एंड यू जब तक चल रहे हो जब तक आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल गया, एंड यहाँ पे आप रख दो. अब यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी मैंने उस वीडियो में समझा रखा है, मैं आपको लिंक अटैच कर दूंगा. ऑलराइट, सो ये दिस इज हाउ द सेटअप इज ट्रिगर 15 मिनट ओपनिंग कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी. अब देखो इसको एक और वे में डिस्कस करते हैं जब आपका डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है? लेट्स सी, देखो यहाँ पे, ऑलराइट, लेट्स टेक द केस ऑफ जब मार्केट 30th को खुला. ऑलराइट, देखो फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल, एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, आई चेंज माई व्यू, ओनली आई कीप वन EMA, right? I'll change my view and we'll take an example of this 30th September. 15 minutes high, 15 minutes low, right? 15 minutes high breach, no. 15 minutes low breach, two consecutive candle close, 30 minutes confirmation. You will initiate a short here, you will enter a short at this level, and until unless आपकी prices वापस इसके ऊपर नहीं आ जाए, आपको वापस ऊपर आने के बाद 15 मिनट की एक कैंडल यहाँ क्लोज नहीं कर दे, आपको आपका शॉर्ट एग्जिट नहीं करना है. सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज फॉलोड बाय इंट्राडे ट्रेडर्स एसेंशियली, जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जिनको मतलब मॉर्निंग में ट्रेड करना है, आपको इसका 15 मिनट कैंडल का लो ब्रीच हुआ और दो कैंडल स्टिक्स या एक कैंडल स्टिक सस्टेन हुई, आप शॉर्ट ट्रिगर करो, और वो जब तक चलता रहेगा जब तक आपका ये नहीं आता. बट आपको एग्जिट कहाँ लेना है, दैट वी विल डिस्कस इन थर्ड पार्ट, ठीक है? ये सिर्फ वीडियो रहेगी, दिस वीडियो विल बी एसेंशियली फॉर ओनली ट्रिगर्स, राइट? तो ये ऐसा ट्रिगर होता है. वील टेक अनदर केस, तो इसको मैं आपको वाई आई एम टेलिंग यू ऑन ईच एंड एवरी सिंगल डे इज इन अ वे वी आर बैक टेस्टिंग इट, कि ये कितनी बार सक्सेसफुल होता है, कितनी बार स्टॉप लॉस देता है. अभी तक 2 बार हमने डिस्कस किया और दोनों बार हमारे वो नहीं लगे. सो दिस वाज ओपनिंग कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी, यहाँ पे ये हाई और ये लो, यहाँ पे ऊपर बंद हुआ, ठीक है? आज यहाँ पे ऐसे, क्योंकि अब जिसने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी मतलब एक कैंडल देखी, उसका ऐसे यहाँ ट्रिगर हुआ, उसका ऐसे यहाँ पे ट्रिगर हो गया. तो इसमें एक सीन ये रहता है कि आपके पास अगर आप यहाँ एंट्री बना रहे हो तो आपका लॉस जो एसएल होता है ना, वो इतना इतना बड़ा होता है आपका एसएल. ये देखो दिस वुड बी योर एसएल, क्योंकि एसेंशियली आप अपनी ट्रेड कहाँ ट्रिगर करोगे, बुलिश ट्रेड है, 15 मिनट के ऊपर बंद हो गया, तो बुलिश ट्रेड आप कहाँ ट्रिगर करोगे, यहाँ पे. तो मार्केट यहाँ आ गया और इस कैंडल स्टिक पे आपका एसएल ट्रिगर हो गया. नाउ इन सम केसेस व्हाट हैपेंस इज, देखो यहाँ पे तो अब ये कंफ्यूज हो गई, क्योंकि अगर आप इस पे 30 मिनट्स करते हैं तो 30 मिनट्स जो लोग डबल कंफर्मेशन के लिए ट्रेड करते हैं, ऑलराइट, सो उनके लिए यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं हुई.
सो इट डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम कि आप सिस्टम कैसा बनाना चाहते हो, मोर यू नो स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो या आपको इंट्राडे बनाना है। ऑलराइट, तो जिस जो 30 मिनट्स लेता है, लाइक कंसेक्यूटिव 2 कैंडल स्टिक्स, यहाँ पे तो एक बंद हुई बट ये दूसरी बंद नहीं हुई। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट 15 मिनट। अब फर्स्ट 15 मिनट्स वाली तो हमने डिस्कस कर ली, यहाँ पे एसएल ट्रिगर हुआ इस पॉइंट पे। ठीक है, अब ये वाला डिस्कस किया, लेट्स डिस्कस, राइट, लेट्स डिस्कस 26। ठीक है, एक शार्प, अच्छा चलो ठीक है, एक शार्प अपरन में भी डिस्कस करते हैं। ये देखो एक एक और केस, राइट। ये देखो यहाँ पे ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल स्टिक हाई और लो, लो ब्रीच हुआ, यहाँ तक आया, आपको यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हुई होगी, यहाँ तक इतना प्रॉफिट मिला, दिस इज व्हाट 302 टिल 203, 100 पॉइंट्स का यहाँ प्रॉफिट मिल गया। बट जब कैंडल से कहीं यहाँ पे आके ट्रिगर कर दिया तो आपका एसएल लगेगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एसएल ट्रेल का, दैट इज ऑल्सो अ सेपरेट वीडियो, हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। बट एसेंशियली यहाँ पे एंट्री कैसे ट्रिगर हो रही है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो आई थिंक लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेटअप, मूविंग एवरेजेस सेटअप, टाइम फ्रेम बेस्ड। अब देखो इसमें जो आप अगर मूविंग एवरेजेस सेटअप का डिस्कशन करते हो तो इसमें टाइम फ्रेम बेसिस पे क्यों होता है डिस्कशन, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज, अगर जो डेली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेजेस को देख रहा है, ही इज अ स्विंग और अ पोजिशनल ट्रेडर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे व्यू चेंज करूँ, आपका ये वाला व्यू लगाऊँ मैं एसेंशियली विद ऑल द मूविंग एवरेजेस, ऑलराइट, तो जो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, दोज आर द पीपल हु ट्रेड फॉर स्विंग और हु ट्रेड फॉर पोजिशनल। और पोजिशनल का ड्यूरेशन रहता है 1 to 3 मंथ्स, स्विंग का रहता है 1 to 3 वीक्स, एंड इंट्राडे का तो आपको मालूम है। ऑलराइट, सो वंस वील डिस्कस ऑन डेली टाइम फ्रेम कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या सीन होता है इनका, मतलब एंट्रीज कैसे आपकी ट्रिगर होती हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द चार्ट। या देखो एसेंशियली जो मूविंग एवरेजेस सेटअप डिफाइन करता है कि आपकी बुल एंट्री कैसे ट्रिगर होगी। लेट्स सपोज आप एक केस लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, विल टेक अ डाउन ट्रेंड, डेली डाउन ट्रेंड में बोल रहा हूँ, पहले हायर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। सो आपकी एंट्री कहाँ ट्रिगर होगी, जब आपकी प्राइसेस ने ऑन द अपसाइड 5 EMA को ब्रेक कर दिया हो, एंड योर 5 EMA ऑल्सो हैज ब्रोकन योर 20 EMA और ऑल दी अदर मूविंग एवरेजेस, देन आपकी बुल एंट्री ट्रिगर होगी। अब नाउ हेयर यहाँ पे जो मैंने चीज़ बोली वो कहाँ पर ट्रिगर हो रही है, यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज ने काटा और ये यहाँ पे डेली कैंडल क्लोज कर दी, तो यहाँ पे आपकी इस पॉइंट पे एक स्विंग या पोजिशनल एंट्री ट्रिगर होगी। उसका स्टॉप लॉस या आप कहाँ तक लेके जाओगे दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट ऐसे यहाँ पे इस सेटअप में आपकी एंट्री ट्रिगर हुई। सो एसेंशियली अगर एक डाउन ट्रेंड आ रहा है आपका, तो आपको बुल एंट्री कहाँ ट्रिगर करनी है। देखो यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड था डेली टाइम फ्रेम में, आपकी बुल एंट्री मैंने क्या बोला, किन दो पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी, योर प्राइसेस शुड कट 5 EMA ऑन द अपसाइड एंड 5 EMA ऑल्सो शुड कट ऑल द मूविंग एवरेजेस। सो डेली पे देखो क्या हुआ, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, prices cut 5 EMA, but did 5 EMA cut all the moving averages here? No. Still the entry is not triggered here if you are a swing and positional trader. Where your entry will be triggered? Here at this point 5 EMA has cut your every moving average from the downside and your candlestick has closed above 5 EMA. Alright. So यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हुई इस पॉइंट पे, एंड अब देखो यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हुई और 5 EMA के बेसिस पे चलता ही जा रहा है वो, राइट। अब नाउ इफ यू वांट टू नो कि ये जो एंट्री आपकी बनी इसका एसएल कैसे ट्रेल करना है, इसका आपको स्टॉप लॉस कैसे लेना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसके लिए डेडिकेटेडली एक वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये था हमारा स्विंग, और बेसिकली अगर डेली पे आप चल रहे हो तो आप पोजिशनली हो, यू आर ट्रेडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month to 3 months। अब इसमें बेरिश एंट्री कैसे होगी, देखो बेरिश एंट्री में केस सिमिलर है। अगर आपका ऊपर से मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है मार्केट, आपकी बेरिश एंट्री कहाँ ट्रिगर होगी, व्हेन प्राइसेस हैज कट 5 EMA एंड 5 EMA
हैज़ ऑल्सो कट 20 EMA। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी देखो प्राइसेस ने 5 EMA को कहाँ पे काटा, यहाँ पे 5 EMA ने 20 EMA को कहाँ काटा, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हुई इस कैंडलस्टिक पे। इस कैंडलस्टिक के बाद आपको मूव कहाँ तक मिला, देखो यहाँ तक, यहाँ तक का मूव मिला आपको, सॉरी ले लिया। तो यहाँ से आपको ये पूरा मूव मिल गया, ये एंट्री आपकी यहाँ ट्रिगर हुई शॉर्ट पोजीशन की, स्विंग यहाँ तक मूव मिल गया, राइट। सो ऐसे एक बेरिश ट्रेड की भी एंट्री आपकी ट्रिगर हुई। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। एट दिस पॉइंट 5 EMA हैज कट 20 EMA एंड आपकी कैंडलस्टिक भी क्लोज हो गई। तो आपकी यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर हुई, और ये जो शॉर्ट पोजीशन थी आपकी कहाँ तक ले गई, आपको यहाँ तक, राइट। एंड इवन उसके बाद जब तक आपका ट्रेंड कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक योर 5 EMA prices are not going above 5 EMA and your 5 EMA is not cutting all the EMAs on that particular time frame on the upside। तो मेरे को लगता है कि ये जो सेटअप आपका पोजिशनल यहाँ पे ट्रिगर हुआ, ये आपको यहाँ तक ट्रेड देके गया, क्योंकि 5 EMA ने अपसाइड पे अभी तक किसी को काटा नहीं। 5 EMA ने सारी मूविंग एवरेज को यहाँ पे काटा, और जैसे ये काटा आपका ट्रेंड ही चेंज हो गया। सो डेली पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। सो यहाँ पे एक बेरिश आपकी एंट्री ट्रिगर हुई। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो एसेंशियली टू सम अप, इन डेली टाइम फ्रेम आपका जो बेरिश ट्रेड या बुलिश ट्रेड वट एवर इट इज़, आपकी प्राइसेस को अगर एक हेल्दी आपका बुल रन चल रहा है, सो ऑन द अपसाइड योर प्राइसेस शुड कट 5 EMA एंड योर 5 EMA शुड ऑल्सो कट 20 EMA। वहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर होगी इफ इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुल रन एंड ऊपर से अगर मार्केट नीचे आ रहा है। इफ इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेरिश रन एंड मार्केट नीचे से राउंड ले रहा है, तो आपकी बुलिश एंट्री कब तक ट्रिगर नहीं होगी, जब तक आपकी प्राइसेस 5 EMA को काट दे और आपकी 5 EMA सारी मूविंग एवरेज को अपसाइड पे काट दे। अब देखो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ली होती कि क्या 5 मूविंग एवरेज ने सारी मूविंग एवरेज को काटा, हर बार आपकी 50 EMA रह जाती डेली पे। बट तो यहाँ पे आपका लॉन्ग कभी ट्रिगर ही नहीं हुआ। बट लॉन्ग कहाँ ट्रिगर हुआ आपका, ये देखो यहाँ पे योर प्राइसेस कट 5 EMA यहीं पे काट देती, बट आपकी एंट्री कहाँ ट्रिगर हुई, यहाँ पे। तो जो आपके पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको इतना पॉइंट जाने से फर्क नहीं पड़ता। वो कितने पॉइंट्स के लिए मैटर करते हैं मालूम है, इतने पॉइंट्स के लिए दे प्ले फॉर। तो उनका इतना तो स्टॉप लॉस होता है। जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ना, दे हैव दिस मच एज स्टॉप लॉस एंड दिस मच एज टारगेट, ये होता है। तो यहाँ पे जिसकी लॉन्ग बनी होगी फॉर 3 to 4 months ही हैज बीन बुलिश। और ये बुलिश कब तक रहना है, कैसे रहना है, ये भी बहुत बड़ा गेम है एक। क्योंकि कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, let me know in the comment section कि you wanted separate dedicated video for this। alright, let's go to early time frame। अब early time frame पे वो लोग ट्रेड करते हैं जो स्विंग होते हैं 1 week to 3 weeks। so थोड़ा पहले चलते हैं early time frame पे। we are already in a strong bull run and we are discussing the case जब मार्केट ऊपर से रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा केस लेते हैं, देखो ये वाला। मार्केट इज इन स्ट्रॉन्ग बुल रन, सेम कॉन्सेप्ट अर्ली पे, सेम कॉन्सेप्ट। योर प्राइसेस शुड कट 5 EMA एंड योर 5 EMA शुड कट 20 EMA। कहाँ पे हुआ ऐसा, इस पॉइंट पे, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिगर हुआ पूरा नीचे। अगर आप बुल देखना चाहते हो, बुल केस, बुल ट्रेड कहाँ ट्रिगर हुई, सॉरी नीचे से मार्केट रिवर्स हुआ, 5 प्राइसेस ने 5 मूविंग एवरेज को काटा, मूविंग एवरेज ने सबको काटा, एंड यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हुई इस पॉइंट पे। यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई, कहाँ तक एंट्री चली, यहाँ तक। ऑलराइट, ऊपर से अब फिर यहाँ से देखो 5 प्राइसेस कट 5 EMA, यहाँ पे काटा बट 5 EMA डिड नॉट कट। तो वो चीज़ यहाँ पे, यहाँ से एंट्री ट्रिगर हुई, यहाँ तक चली, सेम थिंग हैपेंड हियर। तो ये हर बार फॉलो होता है। ठीक है, 15 मिनट्स में विल सी ऑन 15 मिनट्स। आपका मार्केट वॉज कंटिन्यूसली फॉलिंग when your prices cut 5 EMA and 5 EMA cut the prices on the upside। तो आपकी यहाँ पे एक बुल एंट्री ट्रिगर हुई। अब ये एक पेक्यूलर केस है जहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री ट्रिगर तो की, बट आपका एसएल लग गया। अब ये एसएल कैसे लेना है, आपको मालूम है क्या करना है आपको, ठीक है। राइट, सो यहाँ पे ऐसा हुआ, देखो 5 मिनट्स, यहाँ पे तो अल्ट्रा आपका साइड वेज मोमेंटम हो गया था। तो ये वाला एक एनॉमली है मार्केट में, बट एसेंशियली देखो यहाँ तक चल रहा है 15 मिनट्स।
prices cut 5 EMA, 15 minutes prices cut 5 EMA. Did 5 EMA cut your 20 EMA here? No. Here no. यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे तो बहुत बहुत चिपक के चला था, बट एट दिस एग्जैक्टली प्लेस विद दिस गैप डाउन यहाँ पे हुआ, तो आपकी बेयर एंट्री यहाँ ट्रिगर हुई और वो अभी तक चले ही जा रही है। तो अब ये करंट केस है। अब जब तक आपकी ये बेयर एंट्री जब तक चलेगी, जब तक ये जो 5 EMA है ये काट के सबको ऐसे ऊपर ना आ जाए और प्राइसेस आपकी 5 EMA को ना काट दे। मार्केट हो सकता है प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएं, बट एसेंशियली जो आपकी ये वाली मूविंग एवरेज रहेगी ना, ये आपकी हो सकता है या इस वाले से आपका रेजिस्टेंस ले ले यूँ। तो इन द केस आपकी जो 5 EMA है वो अगर ऐसे ऐसे आके सार सबको काट के यूं ऐसे जा रही है, यहाँ पे आपकी एक बुल एंट्री ट्रिगर होगी क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट काट चुकी होगी 5 EMA को। यू हैव टू जस्ट वेट फॉर 5 EMA टू कट एवरी मूविंग एवरेज एंड देन यू हैव टू ट्रिगर योर लॉन्ग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने तीनों टाइम फ्रेम डिस्कस किए हैं इस पे। विल मूव टू नेक्स्ट सेटअप, विल मूव टू डेली हाई एंड डेली लो सेटअप। ऑलराइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है, बहुत मजा आता है इसमें। देखो again, this is a setup used by swing and positional players, but अगर आप टाइम फ्रेम डेली रखोगे तो स्विंग और पोजिशनल है, बट आप अर्ली या 15 मिनट्स रखोगे तो इंट्राडे भी आप फॉलो कर सकते हो। बेसिकली व्हाट दिस सेज इज, अगर आपको नेक्स्ट डे का मूव ट्रिगर करना है, सो दिस इज बेसिकली सिमिलर टू ओपनिंग 15 मिनट कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी, राइट। आप क्या करोगे, जैसे मान लो जस्ट इमेजिन कि इतना प्राइस एक्शन नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ तक अभी तक स्टॉक मार्केट यहाँ तक चला है। तो व्हाट दिस स्ट्रैटेजी सेज, आप यूल मार्क डेली प्रीवियस डेली लो एंड प्रीवियस डेली हाई, एंड आप बुल एंट्री और बेयर एंट्री कहाँ ट्रिगर करोगे, अगर प्रीवियस डेली हाई के ऊपर मार्केट निकल रहा है तो आप बुल एंट्री लोगे। अब ये कैसे आप देखोगे, क्योंकि क्या होता है, व्हाट विल हैपन इज द प्राइसेस विल गो अबव प्रीवियस डे हाई, बट वेदर इट विल सस्टेन और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। सो अगर मान लो आपको यहाँ पे प्राइसेस इसके ऊपर निकल गई, सो यू विल हैव टू सी कि प्राइसेस सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही, दैट साइंस यू विल गेट इन आर्ली टाइम फ्रेम। अगर आर्ली की मल्टीपल 2-3 कैंडलस्टिक सस्टेन कर रही है, देन द आई थिंक मूव इज स्ट्रॉन्ग एंड द मूव इज रियल। बट इन सम केसेस प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के ऊपर जाता है बट सस्टेन नहीं होता, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इंडिकेशन। ये भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बट एसेंशियली तो यहाँ पे प्रीवियस डे लो के नीचे आया अनदर, यहाँ पे प्रीवियस डे लो के नीचे आया बट मार्केट और नीचे नहीं गया, गैप डाउन हो गया। मार्केट खुला यहाँ पे प्रीवियस डे लो के नीचे खुला, बट देखो डिड इन दिस होल मूव फ्रॉम 26,300 did market ever close above previous day high? Market didn't even try to go above previous day high. In this case the previous day high was this, market never went, market continued downwards. Market never went for this candlestick, market continued. Market prices never went, market continued more downward. Prices never went below this also. So the probability is now for the coming Monday candlestick, I'm just taking an example, if the prices are going above this, then and only, and they are trying to sustain in early time frame, then and only bulls will get triggered, and then this move might come like this. So this is what essentially is your daily previous daily high. Now this we have discussed in previous daily break of previous daily low. Now we'll discuss this in break of previous daily high. All right, let's discuss in a strong bull case. See, it was a downtrend here. The markets were in a distribution phase here. Markets were sideways like this. All right, and the moment we closed above previous daily high, we went bullish here. So the long entry for swing and positional were triggered here, So until unless we are closing again below previous day low, we will stay a bull. So now where did we close previous day low? यहाँ पे, तो यहाँ पे trend change हो गया and we saw a move till here. Then again we closed above here, we moved here. And until unless we keep closing above previous day high, we have to stay bullish, right? We'll go little bit more in the history. See, यहाँ पे your previous day it closed below above previous day high again, but it never came back below previous day low. It so यहाँ पे एंट्री एक ट्रिगर हुई आपकी फॉर स्विंग एंड पोजिशनल, यहाँ तक चले, बट द मोमेंट आपकी यहाँ पे क्लोजिंग हुई प्रीवियस डे लो के नीचे, ये वाली, ओके, दिस वाज अ क्लोजिंग। अगर आप ये क्लोजिंग लोगे ना इस कैंडलस्टिक पे, लेट मी जूम इट लिटिल बिट हियर, और ये एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करता है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये क्लोज आया, दिस वाज इक्वल टू प्रीवियस डे लो,
सो आप इसको टेक्निकली ऑन द लाइन केस मान सकते हो, और आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुआ। स्टिल यहाँ पे शॉर्ट नहीं बना। कहाँ शॉर्ट बना? यहाँ पे बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। ऑलराइट, आपका यहाँ बना, यहाँ के आपका यहाँ बना क्योंकि यहाँ क्लोज हो गया, but then again we went sideways, and then so this was a period of sideways and multiple stop losses even on daily time frame. But the moment we closed here, even we went below this one, but again we came back. बट यहाँ पे अब जो मैंने चीज़ आपको मूविंग एवरेज में बताई थी, आप उसको अगर इस चीज़ से कंबाइन कर दोगे तो देखो, जब तक आपको 5 EM के नीचे क्लोज ना मिले, यू कैन स्टे बुलिश। ऑलराइट, so we kept closing on previous above previous day highs. We went we kept continuing going up and up. All right, so let's, हमने bearish case डिस्कस कर लिया, we'll go to early time frame. early time frame में this thing works like charm. It works like charm, seriously I'm telling. See, we'll discuss the case of this. All right, this was a bull rally. early में the moment we closed below prior early candlestick, below prior early candlestick low, right? दिस वॉज प्रायर अर्ली कैंडलस्टिक, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, शॉर्ट ट्रिगर नहीं हुए, यहाँ पे ट्रिगर हो गया, तो यहाँ पे अगर ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे हमने यहाँ तक एंट्री बना ली। सो 20 एसेंशियली 22,700 से 22,600 पॉइंट मूव वी कैप्चर्ड। फिर यहाँ पे प्रीवियस अर्ली हाई के ऊपर क्लोज हो गया, तो ये वाले जो शॉर्ट्स थे वो यहाँ क्लियर आउट हो गए। बट देन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लोज हुआ बिलो प्रायर, ये इसको लो मानो, तो यहाँ पे एक ये क्लोज हुआ। If you consider this as low or prior candlestick, this was a close below prior early candlestick low. Did any time we close our prior candle high, right? अब इस कैंडल के लिए प्रायर कैंडल हाई ये है, तो ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, सो for this candlestick we went above this prior early candlestick high, but we never closed above it. ये वाला हाई बना but we never closed, वी क्लोज नाउ। फिर यहाँ पे फिर ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि अब ये लो था, यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ, ये देखो। उसके बाद डिड वी एवर क्लोज अब प्रायर हाई? नो, यहाँ पे भी नहीं हुआ। सो कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, तो यहाँ पे आपकी एक और बुल एंट्री ट्रिगर हुई, यहाँ पे आपने ले लिया। देन अगेन वी ब्रोक, यहाँ पे एक एंट्री ट्रिगर हुई, आपने ये और मूव आपको मिल गया। अगर आप ये वाला केस देखोगे, सो प्रायर कैंडल हाई क्या होगा? दिस वॉज योर एसेंशियल, तो इस कैंडल स्टिक पे ट्रिगर नहीं हुआ आपका, इस कैंडल स्टिक पे ट्रिगर हुआ, इस कैंडल स्टिक पे ट्रिगर हुआ, देखो मूव कहाँ तक मिला आपको, यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पे एसेंशियली हमने तो यहाँ पे भी इसके नीचे क्लोज नहीं किया, चले ही जा रहा है। हमने कहाँ पे क्लोज किया? प्रायर कैंडल अर्ली कैंडल स्टिक लो, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट दिस, दिस इज ऑल्सो नॉट दिस, दिस इज दिस, बट यहाँ पे फिर आपका ऐसे लग गया। सो एसेंशियली सिस्टम यही बोलता है, बट ये आपका आपको आपके हाथ से अच्छा देखो, करंट केस, मार्केट फेल फ्रॉम 26,300 टिल 25,000, तो यहाँ पे क्या हुआ? जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, डिड वी एवर क्लोज बिलो प्रायर अर्ली लो? वी क्लोज्ड हियर, एक बेयर एंट्री यहाँ बनी। डिड वी एवर आफ्टर दिस क्लोज्ड अवर प्रायर अर्ली हाई? till this point we went but we never closed, we went, we never closed, we went, never closed। ये हाई है, we never closed, this is the high, 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 now this is the high and we closed here। so एक यहाँ पे एंट्री बनी, आपने ये मूव ले लिया, but then again due to the volatility we broke this and entry was triggered here, until this moment we took an entry। I hope you are able to understand what point I'm trying to say। देखो यहाँ पे एसेंशियली क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी क्यों होती है, क्योंकि देखो इसका आप सिर्फ एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझना, आपको टेक्निकल या चार्ट से थोड़ा सा अलग बताता हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है, कभी भी आपकी बड़े टाइम फ्रेम से प्रीवियस डेली हाई या प्रीवियस वीकली हाई का भी मैं एक बार दिखाऊंगा, और मंथली पे भी सेम फॉलो होता है। वाई इट हैपेंस इज बिकॉज प्रीवियस डेली हाई एंड प्रीवियस डेली लो, वेदर इट्स डेली और वीकली, हाइज और लोस पे किसी भी कैंडल स्टिक के बहुत सारे आपके एसएल्स होते हैं। क्यों? लेट्स गो टू वंस वीकली एंड विल सॉरी डेली, एंड लेट्स डिस्कस देयर। देखो अब जो ऑप्शंस, देखो आपको
I think till now, if you are an options trader, you might be you might have a clarity that your markets are derivatives driven majorly. तो अगर किसी कैंडलस्टिक ने ये हाई और ये लो लगाया है, तो आपको क्या लगता है कि जो कॉल सेलर और पुट सेलर होंगे वो अपने मेजर एसेल्स कहाँ रखेंगे? यहीं पे रखेंगे. They'll keep their SL here and here. So whenever markets try to breach this point, this line or this level, your call seller gets they get scared. And if the market is sustaining above it, they start running away. The moment they start running away, your call seller starts unwinding their position and a bull move comes. That's why whenever we cross our previous daily high, we see a good move. Whenever we cross previous daily high, we see a good move. Whenever we cross previous daily low, we see a good down move, right? तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको क्या लगता है यहाँ पे बहुत सारे एसएल्स होंगे कॉल सेलर्स के? द मोमेंट वी वेंट अबव दिस प्राइस, इस काली कैंडल स्टिक में सारे भागने लगे होंगे. एंड ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम पीपल वुड हैव ऑब्जर्व्ड दैट यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है तो वी शुड रन अवे. उन्होंने यहाँ पे अनवाइंड की अपनी कॉल सेल्स और ये बुलिश मूव आया. नाउ दिस बुलिश मूव इज ड्यू टू बुल्स आल्सो एंड बेयर्स आल्सो, क्योंकि बेयर्स गिव अप कर देते हैं यहाँ पे एंड बुल्स और अपनी पोजीशंस ऐड करते हैं. सो दिस इज अ डबल वैमी, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितने भी प्रीवियस बिग टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक्स का हाई और जो लो होता है वहाँ पे बहुत एसेल्स होते हैं. एंड whenever the next candlestick tries to breach that high or low, the call sellers or the put sellers, basically option sellers, they are scared that whether our stop loss will be triggered or not, क्योंकि essentially market में straddle और straddle writers बहुत होते हैं. ठीक है, we'll go to the next and the final strategy, Fibonacci setup, right? I'll clear all the drawings and I'll switch to only 15 minutes 5 EMA setup now. देखो डेली भी डिस्कस करते हैं व्हाट डज फिबोनाची सेटअप सेज. देखो फिबोनाची सेटअप सेज, मैं फिबोनाची की भी वीडियो अटैच कर दूंगा. व्हाट एग्जैक्टली इज फिबोनाची मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट एंट्री आई विल ट्रिगर. सो बेसिकली इट इज यूज टू कैलकुलेट कि कितना परसेंटेज या किस लेवल तक मार्केट अपनी प्राइस को रिट्रेस कर सकता है. ठीक है, सो फॉर फिबोनाची सेटअप टू वर्क वी नीड डिफाइंड हाई एंड डिफाइंड बॉटम, डिफाइंड टॉप एंड डिफाइंड बॉटम. सो लेट्स सी कि ये एक हमने टॉप ले लिया और एक हाई ले लिया. अब नाउ वी नीड टू नो कि ये वाला जो डाउन मूव है इसका जो रिवर्सल है वो कहाँ पे ट्रिगर होगा, राइट? तो एसेंशियली हमारे इसमें दो फिबोनाची में दो जोन्स होते हैं, गोल्डन जोन जिसे बोलते हैं, 50 एंड 61.8. तो किसी भी डाउन रैली का ऑन द अपसाइड अगर 50% या 61.8% ब्रीच हो जाए तो इट हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी टू डू दैट 100% मूव. यहाँ से हमने देखो what we try to do, we drew a Fibonacci from this high. 100% is here, 0% is here. So what did I say कि अगर prices are breaching the level of 61% and daily candle is closed, then we can think कि ये पूरा move 100% तक आएगा. तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री ट्रिगर हुई जो आपको यहाँ तक ले गई. Now we saw this in a case of down move. अब मान लो आपका बहुत अच्छी अप्रैली हो गई ना, आपको ये देखना है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है. सो व्हाट यू विल डू, एक अप रैली का आप मार्क करोगे. देखो अप रैली आपकी कहाँ तक हुई, ये देखो. ठीक है, यहाँ पे आप 0 मार्क करोगे और ये 100. अब आपको मालूम है कि पहले इन द प्रायर केस 100% ऑन द टॉप, 0% ऑन द राइट. सो वेन एवर इट्स अ बुल रैली आपका 0% टॉप पे होगा, वेन एवर इट्स अ बेयर रैली आपका एसेंशियली टॉप पे होगा आपका 100%. ठीक है, ऑलराइट. So now according to this Fibonacci, just a second, the moment आपको मालूम है कि एक बुल रैली थी, तो ये बुल रैली का 61% यहाँ पे रिट्रेस हुआ, तो it has a probability now to reach its 100%. It has a heavy probability. Alright, यहाँ तक आने की हैवी प्रोबेबिलिटी. फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा और ये जाएगा, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट अब आपकी फिबोनाची सेटअप के हिसाब से द मोमेंट यू हैव ब्रीच and sustain 50%, the moment you have breached
50% एंड सस्टेन आपकी वहाँ पे एंट्री ट्रिगर होगी और आपकी 100% तक एंट्री आएगी, तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी. ऑलराइट, सो आई remove this from this point and we'll go little bit backwards to backtest a little bit more. ठीक है, एक डाउन रैली और एक अप रैली एक और देखते हैं. ठीक है, ये मान लो डाउन रैली आपकी, आपने यहाँ पे लगाया ये 100% और यहाँ पे लगाया आपने 0%. सो द मोमेंट इस रैली का 50% से रिट्रेस ज़्यादा हो गया और उसके ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज हो गई, यहाँ पे आपका लॉन्ग ट्रिगर होगा. और यहाँ पे लॉन्ग ट्रिगर होगा आपका, तो ये जो लॉन्ग आपका ट्रिगर हुआ ये कहाँ तक जाएगा, 100% तक. ठीक है, आई एक्सप्लेन दिस. अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि आपने यहाँ से यहाँ मार्क किया, नाउ विल मार्क दिस फ्रॉम दिस, राइट. व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओके, विल मार्क दिस एंड दिस. ठीक है, अब 50% यहाँ पे है, 15% के नीचे ब्रीच हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, तो आपकी एक बेरिश एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुई, आपको यहाँ पे ट्रिगर हुई और आपको ये पूरा अगले दिन का यहाँ मूवमेंट हो गया. ठीक है, अब इसका एग्जिट कैसे लेना है, पार्ट थर्ड, वेट फॉर द पार्ट थर्ड, राइट. ऑलराइट, आपको बात समझ में. अच्छा, इसको है ना थोड़ा वीकली पे टेस्ट करते हैं. हाउ डज दिस वर्क इन वीकली टाइम फ्रेम. ऑलराइट, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे एक हम हमारा क्या मार्क करते हैं, एक इस रैली से इस बॉटम से इस हाई तक मार्क करते हैं, सॉरी. ठीक है, ये हमने एक डेफिनेटिव बॉटम ले लिया और एक हमने डेफिनेटिव हाई ले लिया. ठीक है, अब इस हाई से व्हेन एग्जैक्टली एट व्हाट पॉइंट वी ब्रीच्ड 50% एट दिस पॉइंट. सो बेसिकली अगर यहाँ पे हमने 50% ब्रीच किया है तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम वी हैव अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कि हम ये 100 तक आए. बट यहाँ पे ये सेटअप सक्सेसफुल नहीं हुआ. क्यों, क्योंकि आई थिंक प्रोबेबली फिबोनाची सेटअप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, राइट. सो देखो हमने 50 यहाँ ब्रीच किया, तो इसका एक आप फाइंडिंग ले सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम्स पे 38% भी आप कंसिडर कर सकते हो. सो 38% कहाँ ब्रीच हुआ, यहाँ पे. अब 38% अगर ब्रीच हुआ तो हमने यहाँ से अगर यहाँ पे मान लो एंट्री की तो यहाँ तक तो ऐसे लग जाता, एग्रीड. बट मार्केट जब वापस यहाँ आया तो आपको यहाँ से यहाँ तक का मूव मिला, बस इतना सा रह गया, तो ठीक है. वी कैन से दैट वीकली इज नॉट वर्क, दिस फिबोनाची थिंग इज माइट नॉट वर्क ऑन वीकली. एक और केस में देखते हैं अपन. ठीक है, लेट्स मार्क अ डेफिनेटिव हाई, डेफिनेटिव बॉटम एंड डेफिनेटिव हाई. स्ट्रॉन्ग बुल रन में इसमें केस क्या होता है कि ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट्स होते हैं. देखो अब इसमें आपकी बुल एंट्री कैसे ट्रिगर होगी, लेट्स नॉट लेट्स टेक ओके, लेट्स टेक अ बेरिश एग्जांपल. ठीक है, बुलिश हमने ले लिया, एक बेरिश एग्जांपल लेते देखते हैं वहाँ पे वर्क करता है या नहीं करता. ऑलराइट, तो देखो यहाँ से यहाँ हमने डाउन रैली देखी, अब हमारी बुल रैली कहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, बुल पोजीशन जब हमने 50% ब्रीच कर दिया, यहाँ पे हमने 50% ब्रीच कर दिया, उसके बाद ये देखो यहाँ तक ये पूरा मूव. ठीक है, फिर हमारा सपोर्ट क्या बना, फिर हमने वापस यहाँ तक आया, तो एसेंशियली देखो यहाँ पे ट्रिगर हुआ और ये ट्रिगर कहाँ तक जाएगा, अगर 50% ब्रीच हो रहा है यहाँ पे तो इट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी टू गो टिल 100%, वी वेंट. तो यहाँ पे ये वर्क किया. सो आपको ये चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी कि किस हाई और किस लो पे आपको फिगर आउट करना है. बट एसेंशियली लेट्स सपोज कि करंट केस पे डिस्कस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे. ठीक है, तो अभी तो ये मार्केट आगे प्राइस एक्शन हुआ ही नहीं है, तो we'll take a definitive bottom and we'll take a definitive top. ऑलराइट, ये एक हमने डेफिनेटिव बॉटम और एक डेफिनेटिव टॉप लिया. अब देखो यहाँ पे आपकी एंट्रीज जो ट्रिगर होंगी वो 24,000 का अगर पॉइंट ब्रीच हुआ ना, आपका ये वाला 24,000 का पॉइंट ब्रीच हुआ, तो आपका हायर प्रोबेबिलिटी है कि आप 61 तक तो करोगे ही करोगे, बट आप यहाँ तक भी आ सकते हो, 22,000 से टर्न करोगे आप. तो ये जो चीज़ थी ये ऐसे आके अगर 38 भी परसेंटेज ब्रीच हो गया तो 50 तो बहुत ईजी आ जाएगा. अगर 50 ब्रीच हो गया तो 100 आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. क्योंकि क्या होता है, जो बहुत सारे आपके ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो फिबोनाची सेटअप देखते हैं,
अब उन्होंने ये चीज़ मार्क कर रखी होगी। सो बहुत सारे एसएल्स होंगे जो आपके 24,560 पे ट्रिगर होंगे, 24,000 पे ट्रिगर होंगे, एंड 23,540 पे भी ट्रिगर होंगे। तो अगर 23,540 टूटा तो आई थिंक 22,000 आने से कोई नहीं रोक सकता। एंड वील रिमेंबर दैट इन दिस वीडियो वी हैड दिस डिस्कशन एंड वील रिविजिट दिस वीडियो दैट एक्चुअली डिड दिस हैपन और नॉट। अच्छा, फिबोनाची सेटअप में और क्या होता है, अगर प्राइसेस यहाँ तक आके रिटर्न कर गई तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है फॉर अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस रैली। तो इसमें जो आपकी बुल एंट्री होती है फिबोनाची में वो कैसे बनती है कि अगर आपका सपोर्ट मिल गया 38 से, मतलब मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड कर गया, तो आपकी यहाँ पे आप बुल एंट्री बना सकते हो द डे वी क्लोज अवर प्रायर डे हाई। बट if we start to breach 38 and we close a daily candle below 38%, we'll, it is a high probable thing we'll go till 50. If we breach that also, high probability will 60, and if that also breach, it's a very very high probability that we'll do this. So bear entry कब आपकी ट्रिगर होती है फिबोनाची में, जब आपकी 38, अगर ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, if it's a ongoing bull rally, so when your bear entry would triggered when your 38% is breach, or to get more confirmation let 50% also get broken, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 61 और 100 तक का रिट्रेसमेंट। ऑलराइट, आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो, एंड आई थिंक दिस वाज द लास्ट फिबोनाची सेटअप, या दिस वाज द लास्ट, एंड आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो। इट्स अ 41 लॉन्ग मिनट वीडियो, राइट? प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर if in any form or any way I have helped you in understanding how the setups are triggered. Alright, cheers, stay safe in the market.